Hello, hello. Okay, let me check. I think there are some network issues. Let me call him. सर आपका कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हम्म, Hello, Ranjit. Am I audible now? Yes, sir, you are audible now. Okay. So nothing much we have lost. We have been in this stage. But let me see if there is application of discriminant analysis from financial studies, or I am the first person who is telling that yes, discriminant analysis can be used in the finance. Answer is no. I am not the first person. This is one paper. The discriminant analysis is a tool of forecasting companies' financial health. Big journal, and they had done it. They had reviewed the applying of discriminant analysis in financial health based on 105 bankrupt companies and 2058 non-bankrupt companies. So here the data set, they have been discriminating variable is, not discriminating variable, the grouping variable is bankrupt or non-bankrupt of so many companies, and obviously discriminating function, discriminating variables, they must have taken different variables which relates to the financial health of a company. So forecasting the direction of exchange rate of currency, this is another application of finance. This is the reference where they use discriminant analysis very successfully. And how they did it, they divided two groups related to dollar. First group is the currency rate has gone down by 5% or more over 2-year period, and another group is the countries which devalued their currency between these, and 14 countries that devalued their currency between this period were considered in the group. So these were the two groups, and exchange rate was not done. This is another group was not gone down. So these currencies whose exchange rate have not gone down in comparison to dollars by 5%. Sir, are you moving your slides, because the only thing we can see on the screen is forecasting financial distress. Are you changing the slides also, sir? And these were the discriminating variables they found out. That one is reserve growth ratio, extended money supply ratio, probability index ratio. So all ratios you see, all ratios they have taken. And when they performed discriminant analysis, they found that some variables were not very significant, like extended money supply ratio and marginal propensity to import ratio. These two they dropped. Other variables they kept in the system. And this was their discriminating function. This was their discriminating function. Now what happens? This was the training sample. This table which you are seeing in the backup, that is the training sample. So based on this training sample, they deduced the discriminating. Classification was either devalued their currency or non-devalued their currency. And then what happens? This performance of the discriminant analysis, that 5 out of 9 devalued currencies were misclassified. Misclassified means it was to be classified as a devalued, but it has been classified as a non-devalued, and the reverse. So these are misclassified. So out of a total 38 countries considered, 7 countries were misclassified. So percentage of misclassification was 18%, and the predictive power of the discriminant analysis is tested with another set of 51 countries, and they are actually
using those micro parameters which we saw in the previous slide for 1960s and predicted devalued countries of this. They predicted that who is going to devalue their currency in 1971-72 from these 51 countries based on the data of 1969-70, putting it in the previously shown discriminating function. And actually, it was found that countries at the end of 71-72, how many countries actually devalued their currency. What they did with discriminant analysis, that out of these 51 countries, given the data of 69-70, which data, the micro parameters, they were able to find out the predicted countries which would devalue their currency. And then at the end of 1971-72, they found those countries which did not devalue their currency. And so this was found that now this time out of these 51 countries, only 7 of them were misclassified. For other 51 minus 7 equal to 44 countries were correctly classified. So this is what happened. Yeah, Ranjit, audio problem? No sir, no problem. So how शेयर कर दो ग्रुप में. to perform this analysis? Now someone asking discriminating function. चलो अभी सानी देओल जो है वो आ गया है, तो आप देखिए, आप सामिनी पिक्चर में ट्विस्ट, अभी सानी देओल का एंट्री सही होता है. ऐसे हथियार तो बाजार में बहुत मिल जाते हैं, पर इसके चलाने के लिए जो जिगर चाहिए और मर्द लेके पैदा होता है. सिंगल कर दियो. Now, here I have data about age of who? This guy, loan applicant. Okay. So someone is applying for a loan in the bank. In the bank, if you visit, now the manager told me that can we devise some methodology in order to understand that जिसको लोन दे रहा हूँ वो फिर बाद में लोन वापस करेगा कि नहीं. ये बैंक के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है. लोन तो दे देगा, अब लोन वो आदमी वापस करेगा कि नहीं वो तो समझना बड़ा मुश्किल है. तो वही मतलब उसके लिए मैनेजर ने मुझको कांटेक्ट किया. मैंने बोला कि जैसे आपका बैंक तो ये अभी मतलब अभी बैंक शुरू हुआ ऐसा तो नहीं, काफी साल से चल रहा है. हाँ चल रहा है, 20 साल से चल रहा है. ठीक है, तो 20 साल में आपने किसी ना किसी को लोन दिया है. बोले हाँ दिया है. ठीक है, तो कुछ लोगों का लोन वापस हो गया है, वो डेटाबेस है. कुछ लोग लोन नहीं दिया है, वो डेटाबेस है. हाँ बिल्कुल है, तो दिखाइए. तो उसने दिखाया. तो हमने इसमें से कुछ वेरिएबल आइडेंटिफाई किया. एक है एज, दूसरा है एजुकेशन लेवल. इसको कोडिंग किया गया है कि हाई स्कूल कंप्लीटेड, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएट. ईयर्स ऑफ एसोसिएशन विद करंट एम्प्लॉयर. जो लोग बहुत जल्दी जॉब बदलते हैं वो लोन भी चुकाने में बड़ा दिक्कत है. हाउस होल्ड इनकम इन 1000 रुपीज. ओके ओके. डेबिट टू इनकम रेशियो इन परसेंटेज. हाउ मच मनी रिमेन्स इन डेबिट. क्रेडिट कार्ड डेबिट इन 1000 मंथली. डेटा अबाउट क्रेडिट कार्ड डेबिट इन 1000. Other debt in 1000. And default, that means ultimately that individual became a defaulter or he has paid back the loan. So that is my grouping variable. All the other variables, age, education, employee, address, income, debt, credit debt, other debt, these are all my discriminating variables. Yes. Excuse me, sir. So this is Harsha Jariwala. I have one question. So could you please go to the variable description PPT once again? This one, madam? Yes, sir. Sir, in this analysis, whether age, income, and date. So whether these are the categorical variable or nominal variable, sir? No, madam. This one is age. Age is the number. 5 साल, 10 साल, 15 साल is age. Okay. Whatever we say. Okay, sir. Okay, understood. Yes, sir. Education is a categorical variable because we have categorized.
Like Yes, one sir. is high school completed, two is undergraduate, three is graduated, and postgraduate is five. Okay. Okay, sir. So, and did not complete high school is one. Okay. So this is Hmm. categorical. Employment Hmm. is years of association with current employer. जैसे आप नौकरी करते हैं तो जिनके वहाँ नौकरी करते हैं अब कितने साल से है 5 साल से 6 साल से जैसे मैं जो एम्प्लॉयर के Okay. साथ काम कर रहा हूँ अभी असम यूनिवर्सिटी It, में 2008 से हूँ, तो मेरा okay. 13 ईयर्स हो गया ठीक है तो दिस इज years okay and so years of association with current address years for which staying at the current address जैसा मैं मेरा अपना घर में रहता हूँ तो बचपन से रह रहा हूँ तो 1978 से रह रहा हूँ तो 1978 से अभी जितना हो गया Hmm. 58 98 2008 Yeah. 2018 40 45 years हो गया Okay. It so means, this sir, is it, 40 correct it income means, household sir, income okay okay. It means, sir, we can perform for discriminant analysis. Independent variables can be categorical as well as can be yeah nominal yeah. also. Yeah, nominal तो not so much. It मतलब should be only it numbers, can be numbers. categorical and continuous. Categorical and continuous. पर continuous होने से ज़्यादा बेहतर है. Other Okay, than sir. that also it can be handled. But you must see that there are more continuous variables than nominal or categorical. Okay. Hmm. Okay, sir. Only your this one last one this has to be a categorical variable. Right? What Yes, is your sir. last? That is grouping variable. So it has to group. So this is my SPSS data set. Thank you, sir. And screenshot. So this is the SPSS data set screenshot. This is the ticket. So what we do, we go to analyze, we go to classify, you go to discriminate. So analyze and then classify. There is an option discriminant. I hope that most of you are having SPSS or if not having SPSS, have seen SPSS at least sometime. Because Excel does not provide discriminant analysis. This is a multivariate tool which Excel cannot handle. It is available in SPSS. You can do it in R also. So classify and then discriminate. After that, it will show you one phone will come before you, and then it will show you that what are the variables. So first grouping variable. So grouping variable is whether this individual previously defaulted or not. The last variable. You click here, and then you click in this box. It will go here. Define range, and in the range I gave 0 for a defaulter, 0 for a non-defaulter and 1 for a defaulter. Right? Put this minimum and maximum values and then click on continue. Once I click and continue, this default question mark becomes default 0 mark. In the independent variable, I select all the variables and I click here. So all the independent variables from the left side travels to the right side. If you want that, no, I don't want to take all, I want 5 of the variables. If you have some logic of doing that, then you can select those 5 individual one by one and bring it to the right side. Okay. After that, you go to statistics. In statistics, what you do is that you click in this 1, 2, 3 BoxM is something which is very important. I will tell you what BoxM does. The entire data set will now be classified as defaulter and non-defaulter. जैसे ये एक्टिविटी शुरू हो गया, the data set अंदर ही अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अगर 3 मेरा क्लासिफिकेशन रहता तो 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाता. अभी 2 है तो इसलिए 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया. एक हो गया डिफॉल्टर वाला, एक हो गया नॉन डिफॉल्टर वाला. अभी से आगे तक इतना कंप्यूटेशन होगा वो अलग अलग डेटा सेट के लिए होगा. मतलब देखने से पता नहीं चलेगा, देखने से लगेगा डेटा सेट एक ही जगह पे, पर एसपीएसएस को समझ में आ गया कि हमको एनालाइज जो है वो अलग अलग सेट के लिए करना है. एक डिफॉल्टर लोगों के लिए, एक नॉन डिफॉल्टर. First means univariate ANOVA and BoxM. BoxM is important. A test of equality of 2 group covariance matrices for sufficiently large sample and non-significant p-value means there is sufficient evidence that the matrices do not differ. The test is sensitive to departure from multivariate normality. That means this is one important test. That means one assumption that the 2 balanced covariance matrix of the 2 groups. What are the 2 groups? Schizophrenic and non-schizophrenic. They should not differ. So this is one assumption. Okay. Now,
look at this. What this table is trying to tell you. This is called test of equality of group means. Test of equality of group means. मतलब दोनों ग्रुप का, कौन दोनों ग्रुप का? एक सिजोफ्रेनिक का और एक नॉन सिजोफ्रेनिक का. क्या एज, एवरेज, ऑन एन एवरेज दोनों ग्रुप का एज एक है, सेम है. लेवल ऑफ एजुकेशन दोनों ग्रुप का सेम है. ईयर्स विद करंट एम्प्लॉयर दोनों ग्रुप का सेम है. ऐसे ऐसे करके हर वेरिएबल के लिए हर वेरिएबल के लिए कंप्यूट. ठीक है, हर वेरिएबल के लिए ये कंप्यूट. तो इसमें जो आउटकम ऑफ दिस हैज कम, व्हाट इज आउटकम ऑफ दिस, दैट दिस वैल्यू, दिस इज द p वैल्यू. जस्ट अ मिनट. हेलो समझा देना, हेलो, अगर कुछ आएगा बस बता देना. एक तो पढ़ाने का बात कर. मोटा मोटी. So this is actually telling me that the household income of the two groups, that is here it is those who return the loan, defaulter and non-defaulter, household income is not significant. So this is the p value. This value needs to be less than 0.05 for a significant difference. Here the difference is not significant as evident from the value p value here. Other than this, all the other variables, the group, that is the defaulter and the non-defaulter, very significant. That means in the discriminating function, I no need to call this household income. We should do the discriminant analysis with other variables. All other variables are good enough except household income. So this is the findings of it. So what I do, I come back to this sheet and I click discriminant, household income, and I click here. So when I do this, it will go back to other variables remains. So this is the what I do from the previous. Then I go once again to statistics, and then I click that within group. I click Fisher's discriminating function, unstandardized. So these are the clicks which you get. So Fisher's. So this is what we do. Now what is the function coefficient? So these are some rules under which SPSS work, and this is what helps in the determination of the discriminating function. Someone was asking that how discriminating function is generated. So these are the process. So there are different rules: maximum likelihood rule, Bayes rule, and Fisher's linear rule. In SPSS, the discriminating function is calculated based on the Fisher's linear rule. Bayes rule is not used. Maximum rule, likelihood rule has a very limited usage. So it works on Fisher's linear rule. You tell me that if you want to tell, I want to know Fisher's linear rule also. So in that case, it is something like that, that you take a flight from Allahabad to Allahabad में तो airport बन गया अच्छा. You take a flight from Allahabad to Delhi, and then flight में चढ़ने के बाद तुम पायलट को जाके पूछना है कि सर हमको सिखा दीजिए कैसे प्लेन चलाते हैं, वो भी सिखा दीजिए. तो ऐसा बात हो गया कि if you want to know more, that means जो Fisher's linear rule वो कैसा काम करता है वो सीखना है. तो इसके लिए पूरा एक मल्टीवेरिएट का कोर्स करना पड़ेगा. फिर उसमें धीरे धीरे वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, वेरिएंस स्ट्रक्चर, लीनियर कॉन्ट्रास्ट, ये सब आते आते फिर धीरे धीरे Fisher's linear rule भी हम लोग सीख लेंगे, जो हम लोग PG स्टूडेंट्स को सिखाते हैं. So for this discussion of 1.5 hours, I tell you the name of the process which actually takes you to the deduction of the discriminating function. But this is not recommended that I will tell you that how Fisher's discriminating function or Fisher's linear rule produces the discriminating function. ये मैं नहीं बताऊँ. ऐसा नहीं, मुझे पता नहीं, पता है किसी स्टूडेंट को मल्टीवेरिएट नहीं पढ़ा, पर इसको पढ़ाने के लिए मुझको जो है 4-5 क्लास को लेना पड़ेगा, 1.5 घंटे का, फिर आके पहुंचेगा डिस्क्रिमिनेट. ओके, नाउ कम बैक हियर. सो दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ वी क्लिक ऑन क्लासिफाई. So we click on classify, and what we do is that I want that all groups equal. So this is one option I have to give, that all groups are equal importance. Then I will give click this one. If I tell that no, the group should get importance based on their size. जैसे डिफॉल्टर लोग ज्यादा है तो उसी हिसाब से इसको डिफॉल्टर का प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होना चाहिए.
और जो बैंक का मतलब डिफॉल्ट नहीं करते, लोन वापस कर देते, उनका ग्रुप छोटा है, तो उसी हिसाब से इनको इंपॉर्टेंस देना है. देन आई विल click here that compute from group sizes. So recommended that you go with all groups equal and then you proceed further. So these are the explanation of this. Case wise result will give you the result case wise. It means ऑलरेडी तो हमारे डेटाबेस में बहुत सारा लोग हैं जिन्होंने बैंक में लोन लिया, तो वो प्रिडिक्टेड भी प्रोड्यूस करेगा कि ऐसा तो इसने लोन लिया है, इसने लोन वापस कर दिया, पर शायद प्रिडिक्टेड वैल्यू कुछ और है. मतलब एक्चुअली व्हेन यू परफॉर्म द एनालिसिस, generate the discriminating function and apply it on the same sample from which you have reduced, तो उसका एक प्रिडिक्टेड वैल्यू भी आएगा कि डेटा के ऊपर वो प्रिडिक्ट करता है ऐसा. तो उससे पता चलता है कि कुछ मिसक्लासिफाई हो रहा है कि नहीं. मतलब एक्चुअली लोन पे कर दिया है, पर प्रिडिक्टेड मॉडल बोलेगा कि इसने लोन नहीं पे किया, या जिसने एक्चुअली लोन नहीं पे किया है पर प्रिडिक्टेड मॉडल बताता है कि हाँ वो लोन पे कर देगा. अगर ऐसा केसेस है तो दीज आर कॉल्ड मिसक्लासिफिकेशन. मिसक्लासिफिकेशन से हमको ये पता चलेगा तुम्हारा डिस्क्रिमिनेटिंग फंक्शन कितना कॉन्फिडेंटली काम कर रहा है. अगर तुम्हारे डेटाबेस में लगता है कि 10% मिसक्लासिफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब हर 100 में 10 बार ये डिस्क्रिमिनेटिंग फंक्शन गलत कर रहा है, तो फिर बैंक मैनेजर को हम इन्फॉर्म कर देंगे, देखिए ये मेरा डिस्क्रिमिनेटिंग फंक्शन है. नया कोई बैंक लोन लेने आए तो उनका जो वैल्यूज है, लाइक कितना ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, का एज कितना है, मतलब इसी एम्प्लॉयर के साथ कितने दिन काम कर रहा है, इसी एड्रेस में कितना, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस मॉडल में डाल दो, तो मॉडल तुमको बोल देगा ये डिफॉल्ट करेगा कि डिफॉल्ट नहीं करेगा, लोन वापस करेगा कि नहीं करेगा, ये बता देगा. अब तुम डिसाइड कर लो इसको लोन देना है कि नहीं, क्योंकि इस मॉडल में 13% मिसक्लासिफिकेशन है. मिसक्लासिफिकेशन मतलब इसको तुम सोचा कि नहीं है तो लोन नहीं वापस करेगा, पर ये एक्चुअली लोन वापस करता, अब दे देते तो वापस करता. और उल्टा भी हो सकता है, इसको आपने भरोसे में लोन दे दिया कि ये मॉडल बोल रहा है कि ये लोन वापस करेगा, दे दिया और पैसा लेके भाग गया. दिस केसेस आर मिसक्लासिफिकेशन. ये कितने बार होगा? 100 लोगों को सर लोन देंगे आप, तो 100 में से 13, कौन सा 13 वो मुझे मत पूछिए, 100 में से 13 बार ये मॉडल जो है फेल कर सकता. तो अभी मैनेजर डिसाइड करेगा कि मेरा डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस वो देगा या वो डस्टबिन में डाल देगा, वो उसका डिसीजन. ऐसा कोई नहीं है कि 10 के नीचे होने से बहुत अच्छा है, 10 के ऊपर होने से बहुत खराब है इस क्लासिफिकेशन परसेंटेज, ऐसा कुछ नहीं है. इट विल डिपेंड ऑन द रिसर्चर, इट विल डिपेंड ऑन द यूजर दैट व्हाट अमाउंट ऑफ मिसक्लासिफिकेशन ही इज गोइंग टू अलाउ इन द मॉडल. ओके, कभी कभी कुछ डेटा सेट में मिसिंग ऑब्जर्वेशन आ सकता है. जैसे आपने डेटा दिया, उसका एज वाला डेटा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, कितना है इसका एज लिखा था, फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं था, ऐसे कागज का फॉर्म में था, तो एज का सही पता नहीं चला, या मतलब कितने दिन एम्प्लॉयर का साथ काम कर रहे हो तो उसका सही जवाब नहीं दिया या जवाब ही नहीं दिया, ब्लैंक रख दिया. तो कभी ऐसा हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशन मिसिंग हो जाएगा. मतलब एक सब्जेक्ट का बाकी सब ऑब्जर्वेशन है, 1-2 ऑब्जर्वेशन बीच में मिसिंग. इन दैट केस यू मे क्लिक हियर, so it will be replaced by the mean value of that variable. So this you can do. Let's proceed. These are some plots are there, not so important and very difficult to interpret. And the save the result. कौन सा रिजल्ट चाहिए? जैसे प्रिडिक्टेड मेंबरशिप, प्रिडिक्टेड ग्रुप मेंबरशिप हम ले लेते हैं, उसको हमें पता चलेगा कि मॉडल एक आदमी को जो ऑलरेडी डेटाबेस में है, जिसका मुझे पता है कि डिफॉल्टर है कि नहीं, मॉडल उसको कहाँ पे फेंक रहा है, मॉडल उसको कहाँ पे रख रहा है, डिफॉल्टर में रख रहा है कि नॉन डिफॉल्टर में रख रहा है. तो प्रिडिक्टेड ग्रुप मेंबरशिप हम ले लेते हैं. अगर इसमें अनचेक कर दीजिए तो वहां पे कुछ नहीं आएगा, डेटाबेस में कुछ नहीं आएगा. अब ये सब करने के बाद कंटिन्यू करके और फिर ओके दबा दो, बस हमको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया. पहला ये टेबल जो पहले दिखाया था, इसमें से मैंने वो क्या हाउस होल्ड इनकम हटा दो. अभी देखिए सब में पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, मतलब सब सिग्निफिकेंट है अक्रॉस द टू ग्रुप एज लेवल ऑफ एजुकेशन. तो इससे हमें पता चलता है मैंने जो वेरिएबल्स यूज किया है वो बहुत अच्छा है, वो सही है और मेरे काम का वेरिएबल्स है, इससे मुझे पता है. नेक्स्ट बॉक्सम रिजल्ट. तो बॉक्सम रिजल्ट इसको जो है ये मतलब होना चाहिए था मोर देन 0.05, मतलब दोनों जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स एक जैसा होना था. ये कह रहा है कि नहीं, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स थोड़ा अलग है, पर ये जो assumption है that variance covariance matrix need to be similar of the two groups, that is defaulter और non defaulter का सेम होना चाहिए, ये थोड़ा रोबस्ट assumption है. रोबस्ट assumption मतलब ये अगर
मतलब नहीं माना जाए, डाटा डज नॉट अवॉइड बाय दैट assumption, तो भी चल जाता है। तो इसको मैंने चला दिया। असल में तो यहाँ पे थोड़ा रुक के देखना चाहिए था, मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसको रोबस्ट assumption है, इसलिए ठीक है। दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज एक्चुअली अप्लाइड व्हेन यू हैव मोर नंबर ऑफ ग्रुपिंग वेरिएबल्स। हियर देयर आर ओनली 2 ग्रुपिंग वेरिएबल्स कैनोनिकल कोरिलेशन के लिए। 2 से ज्यादा अगर है देन इट इज यूजफुल, बट हियर इट इज नॉट यूज्ड एज देयर आर मोर देन only 2 grouping variables. Okay, eigenvalues. Now this gives an explanation that 29.6% of the variation in the group is explained by the discriminant analysis. Now with lambda. Now this is important. This lambda value is important. Multiplied by 100. Multiplied by 100. This indicates that the discriminant function is significant. कैसे मिला? इससे मिला। तो p value less than 0.05 है। ये बताता है कि डिस्क्रिमिनेटिंग फंक्शन कोई काम का है या ऐसे ही है। तो ये 0.05 से अगर ऊपर हो गया, दैट मींस ये डिस्क्रिमिनेटिंग फंक्शन कोई काम का नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है। मतलब हमने जो इतना कुछ किया है, ये सब बेकार गया, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस फेल करता है। तो ये जो है, अगर तुम्हारा आपने किसी पेपर में डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस यूज करते हो, देन यू हैव टू पास थ्रू दिस टेस्ट। रिव्यूअर यही ढूंढेगा कि विल्क्स लैम्डा का वैल्यू कितना है, whether that value is significant. If that value is significant, बोले तो discriminant analysis बिंदास काम कर रहा है। Now matrix structure. So this is one function of this. Now what I understand from this, that this is that किसका important ज्यादा है? देखिए debit to income ratio, it is maximum. Forget the sign, look at the value. Years of current employer 0.44. Credit card debit in 1000 0.43. धीरे धीरे वैल्यू घटता जा रहा है। मतलब आउट ऑफ दिस वेरिएबल्स 1 2 3 4 5 6 7, आउट ऑफ द 7 वेरिएबल्स ये 3 वेरिएबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे कम इंपॉर्टेंट है एज इन ईयर्स। तो दिस गिव्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेडिक्टर वेरिएबल्स। प्रेडिक्टर वेरिएबल्स मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग वेरिएबल्स। अब ये आ गया डिस्क्रिमिनेटिंग फंक्शन। ये अल्टीमेटली जिसका मुझे तलाश था, जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। एक जगह गया तो वो लोग कोर्स में ये कर रहे हैं, बहुत कुछ मुझे दिखाया स्टेटिस्टिक्स से वो ये। फिर बाद में पूछा ये सब हम क्यों कर रहे हैं, बोला क्यों कर रहे हैं, बोला कि कप के लिए कर रहे हैं। तो ये जो इतना किया किसके लिए किया, इस कप के लिए किया। मिल गया मुझे वर्ल्ड कप, ये मिल गया मुझे डिस्क्रिमिनेटिंग फंक्शन। अभी तो कोई मतलब इसका नहीं डिस्क्रिमिनेटिंग फंक्शन, और इसमें मिल गया ग्रुप सेंट्रॉइड। क्योंकि याद है ग्रुप सेंट्रॉइड मिलना भी जरूरी है, खाली डिस्क्रिमिनेटिंग फंक्शन मिलने से कुछ नहीं होता है, साथ में ग्रुप सेंट्रॉइड मिलना जरूरी है। अब क्या करेंगे, मान लो ये एक आदमी, ठीक है, एक बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, तो ओके, तो इसका एज है 44, एजुकेशन लेवल 3 है, ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इतना 12 ईयर्स, एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है, उसका अपना ही बिजनेस है। ईयर्स ऑफ एड्रेस, यही एड्रेस पे 3 साल से रह रहा है। डेबिट टू क्या रेशियो 13, क्रेडिट कार्ड डेबिट 11.2, अदर डेबिट 2.17। दीज आर द बिल। नाउ व्हाट आई विल डू, look at the previous one. This is the previously defaulted. Yes, 1.07. Previously defaulted. No, minus 0.390. Minus 0.390. Now what happens for this individual? I replace these values in the discriminating function which I have got in this one. This function. This function I replace the discriminating value. So in age I write 44, educational level 3, years of employment 12. Years of staying in same address 3, like this, and I found that 3 point. Now what are the group centroids? Group centroids वही कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया 3.3 and 1.07. This is minus 0.390. तो ये 3.3 है, तो ये किसके पास, ये इसके आसपास 1.07 के आसपास है, ये 3.3 है, minus 0.390 है। तो this is करीब to yes. That means if I give loan to this businessman who is having these values, then there is a possibility that he will turn out to be a defaulter when he needs to pay back the loan. So I will tell the manager, don't pay, give him the loan. And I will point out him as a defaulter. That means I will classify. And this is another way of classification, okay, giving the same result but in a different way. So I don't discuss this now. Now in this, what actually happens, you see, here you see based on the predicted values,
दैट मीन्स वही डेटा सेट जो है हमारे पास, उसमें मैंने बोला था कि प्रेडिक्टेड वैल्यूज दिया जाएगा, it will tell whether a person is a defaulter or not based on the data set. We found that this is the predicted membership and this is the actual membership. Actual membership मतलब no, मतलब वो डिफॉल्टर नहीं होगा, मतलब लोन पे करेगा, और प्रेडिक्ट करने का बाद भी नो हुआ है, ऐसा 336 केसेस। ये है कि एक्चुअल में वो लोन पे डिफॉल्टर रहा है, यस, और प्रेडिक्शन भी यस बोल रहा है, तो दिस इज 120। तो दिस 336 and 122 these are the correct predictions। इसमें क्या है कि एक्चुअली उसने लोन पे कर दिया, डिफॉल्टर नहीं था, पर प्रेडिक्टेड ग्रुप बोल रहा है कि नहीं ये डिफॉल्ट करेगा। कितने लोग हैं? 104 है, और इसमें एक्चुअली उसने डिफॉल्टर रह गया, पर प्रेडिक्टेड ग्रुप मेंबरशिप बोल रहा है कि नहीं वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, वो लोन वापस कर देगा। तो दिस डायगोनल वैल्यूज आर द रॉन्ग प्रेडिक्शन, दिस डायगोनल वैल्यूज आर द करेक्ट प्रेडिक्शन। So what happens? We have, if you take this total and divided by this plus this, then divide by 336 plus 112 divided by total number of them, that is 76.3%. That is 73.6% cases are correctly specified. So out of 600 cases, 336 plus 122, that means 8, 5 and 4. 485 cases are correctly classified out of 600 and 142 cases are wrongly classified. So they are misclassified. So chance of correct classification. If you look at the saved variables in my data set, then you will find that in the SPSS data set, two new variables shall now be added to your data file, one containing the discriminating score of every individual, and another is the predicted group of every individual, that whether this group is discriminating or not. So this is the discriminating function and this is what is the predicted group. मतलब डेटा मेरा यहाँ तक था, डिफॉल्ट तक था। अब जैसे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एसपीएसएस में एनालिसिस किया, ये मेरा दो नया वेरिएबल्स आ गए। एक है द डिस्क्रिमिनेटिंग फंक्शन, वो जो d इक्वल टू सम इक्वेशन है, उससे जो वैल्यू निकला इस इंसान के लिए वो वैल्यूज, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाला है। इसमें देखिए पहला इंडिविजुअल जो है वो बाय डिफॉल्ट लोन में उसने डिफॉल्ट किया, मतलब लोन वापस नहीं किया, और मॉडल भी बोल रहा है कि नहीं वो लोन तो वापस नहीं करेगा, मतलब डिफॉल्टर रहेगा, मतलब प्रेडिक्टेड मॉडल। इसमें इसने डिफॉल्ट नहीं किया, मतलब लोन वापस कर दिया, मॉडल भी बोलता है कि ये लोन वापस करेगा। करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज द फर्स्ट एरर। एक्चुअली उसने लोन वापस कर दिया, नॉट ए डिफॉल्टर, बट प्रेडिक्टेड मॉडल बता रहा है कि ये डिफॉल्टर होगा। इसमें भी गलती है, फिर करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये गलती है, ये करेक्ट, ये गलती है, ऐसा कुछ कभी कभी गलती मिलेगा। एंड टोटल 73% केसेस का प्रेडिक्शन भी करेक्ट। तो इससे पता चलता है हमारा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। बाकी जैसे 73%, अब मैं मैनेजर को बोल दूंगा देखो 73% केसेस में ऐसे ही प्रेडिक्शन देगा, बाकी 28 का पता नहीं, 27 का पता। समराइजिंग द रिजल्ट, इतना कुछ काम किया है, एक्चुअली पेपर में लिखना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस वाज कंडक्टेड टू प्रेडिक्ट इफ ए बैंकर कैन आइडेंटिफाई इफ ए लोन एप्लीकेंट शैल टर्न आउट टू बी ए डिफॉल्टर और नॉट। द प्रेडिक्टेड वेरिएबल्स वेयर एज, एजुकेशन लेवल, years of association with current employer, years staying at present address, debit to income ratio, credit card in 1000, debit in 1000 and other debit ratio. That means I am giving the description of the variables. वो जो बीच में जो हाउस होल्ड का ड्रॉप किया, ये सब नहीं बोला। तो क्या जरूरत है कि हाँ पहले लिया था फिर सिग्निफिकेंट नहीं आया फिर ड्रॉप किया, ये सब इतना बोलने की जरूरत क्या है? मतलब आउटकम में तुम बताओ, जैसे तुम पहले से बहुत स्मार्ट थे, जितना वेरिएबल दिया सारे सिग्निफिकेंट आ गए, ऐसे दिखाओ। सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन ऑल द प्रेडिक्टेड वेरिएबल्स एंड ऑल ऑफ देम वर रिटेन्ड इन द फर्दर एनालिसिस। देखो यहाँ थोड़ा झूठ बोला, अर्ध सत्य बोला, मतलब इसमें तो पहले मुझे मिला एक वेरिएबल जो एक्चुअली कोई काम का नहीं है, उसको फिर हटाया फिर किया, तो ये सब नहीं बताया, ऐसे ही लिख दिया कि जैसे जितना वेरिएबल्स लिया सब सिग्निफिकेंट आया, तो अर्ध सत्य। रिजल्ट कंटिन्यू करता है, द इक्वलिटी ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ द टू ग्रुप्स वर नॉट अटेन्ड, बट एज द सैंपल साइज वाज लार्ज एनफ वी कुड प्रोसीड फर्दर। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का फंक्शन है वो देने की इतना जरूरत नहीं है, was able to classify 73.33% cases successfully out of the predictors that were statistically significant.
we found that debit to income ratio years with current employer and credit card debit in 1000 are very strong predictors. तो ये 3 वेरिएबल जो है स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जनरली जो ऐसा हम करते हैं, ये एक्चुअली आजकल ये सब स्टेटिस्टिक्स का टेक्निक। आजकल एक नया सब्जेक्ट आया हुआ है, डाटा माइनिंग, और उसने अपना पोशाक चेंज करके एक नया अवतार ले लिया और बोलता है डेटा साइंस। डेटा साइंस डेटा साइंस ये सारे उनके और भी जगह से चुराया है, और जगह से चुराया है, और सबसे ज्यादा उसने चोरी किया है स्टेटिस्टिक्स का। सबसे उसका स्टेटिस्टिक्स का पूरा एकदम सत्यानाश कर दिया। सारे स्टेटिस्टिक्स टूल्स ले गए और उसी से उनका दुकान चल रहा है, और बोलता है ये डेटा साइंस है, डेटा साइंस। अच्छा ठीक है, तो डेटा साइंस का एक कॉन्सेप्ट है कि एक सैंपल चाहिए मुझे, बड़ा वाला सैंपल, जिसका नाम है ट्रेनिंग सैंपल। वो ट्रेनिंग सैंपल से हमारा डेटा जो है उसको हम ट्रेन करेंगे, सॉरी डेटा को नहीं, उस ट्रेनिंग सैंपल से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, क्योंकि मॉडल को सिखाना पड़ेगा कि ऐसा है। जैसे पहले एग्जांपल दिया था, बच्चा अंदर घुस रहा है, पकड़ रहा है आग, तो ऐसा उसको पता चलता है आग। जैसे मेरा एक भाई था, उसको बचपन में एक मैग्नेट मिल गया, तो फिर वो घर में ढूंढता है, हर चीज में वो लगा था। अब जिसमें आयरन या स्टील है उसमें तो वो चिपक जाता है, तो वो चिपकता है, यहाँ चिपकता है, फिर लकड़ी के चीज में लगाता है, यहाँ चिपकता नहीं, प्लास्टिक में लगाता है, चिपकता नहीं, यहाँ चिपकता है, यहाँ चिपकता नहीं। तो ये जो इसका एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब उसका लर्निंग हो रहा है। कुछ दिन बाद उसको पता चल जाएगा कि ये मैग्नेट कहाँ चिपकेगा और कहाँ नहीं चिपकेगा। तो दिस टाइप ऑफ सैंपल इज कॉल्ड एज ए ट्रेनिंग सैंपल। ये तुम्हारा मॉडल को ट्रेन करेगा। अब तुम्हारा मॉडल एक स्टेज पे आ गया कि अभी मॉडल बोल गया कि नहीं, मेरा ट्रेनिंग हो गया, अब मैच खेलने के लिए मैं तैयार हूं। और इसके लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशंस हटा के रखेंगे पहले से। मान लो मेरा 600 सैंपल साइज है, 600 में से 500 से मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा और 100 अलग से बचा के रखेंगे। अब जो मॉडल ट्रेन होके आ गया, उस पे हम डाटा डाल के, ये 100 ऑब्जर्वेशन जो रख दिया है, वो डाटा डाल के देखेंगे कि कितना अच्छा प्रिडिक्शन हो रहा है ये 100 में। तो वो जो दूसरा सैंपल है उसका नाम है होल्ड आउट सैंपल। तो इसमें देखिए, गेट द डेटा, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स, एस्टैब्लिश द मॉडल, टेस्ट द मॉडल ऑन द सेम डेटा। ये हो गया ट्रेनिंग सैंपल। कीप aside a small part of the data. Use the remaining major portion of the data to identify significant variables, establish the model. Test the model on the data kept aside. मतलब ये जो 600 ऑब्जर्वेशन है, 500 में से हम मॉडल को डेवलप करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस फंक्शन निकालते हैं, फिर सेंट्रॉइड निकालते हैं। ठीक, अब वो 100 ऑब्जर्वेशन डाल के देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या बताता है। पहला आदमी क्या बताता है, वो डिफॉल्टर होगा कि नहीं होगा, तो वो कुछ बताता है डिफॉल्टर होगा। अब ये मतलब 501 नंबर आदमी जो है वो डिफॉल्टर हुआ कि नहीं हुआ है, दैट इंफॉर्मेशन आई है, अभी मैं उसको चेक करूंगा। तो इससे क्या होगा, एक फायदा क्या होगा, दैट 500 ऑब्जर्वेशंस ऑन व्हिच आई डेवलप्ड माय मॉडल, ये अलग कर दिया, और ये 100 मॉडल डेवलपमेंट में कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको अलग करके रखा, अभी उसको काम में ला रहा है। तो दिस एक्सरसाइज इज ऑफन डन दिस डेज। तो जैसे कि इसमें क्या है, we use the discriminating function and compute discriminant score for each of these 100 cases. पहला 500 केस से निकाला और 100 अलग करके रख दिया। We compare the discriminant score for each group and find out for each observation if it is a defaulter or not defaulter. This is the predicted group for those 100 observations. We then see the actual group of the 100 observations and count the number of correct matches. इस particular data set मैंने जब ये एक्सरसाइज किया तो मैंने देखा 78 केसेस में ये मैच जो है वो अच्छा काम। पहले मेरा 73% करेक्ट, अभी जो आउटसाइड द सैंपल जाके मैं जब होल्ड आउट सैंपल में अप्लाई किया तो मैंने देखा 78% टाइम्स वर्क बेटर। ये एक्सीडेंट है कि पहले 73 अभी अच्छा कैसे हो गया, एक्सीडेंट है क्योंकि दूसरा 100 लोग है तो शायद वैल्यू इधर उधर होगा। पर मुद्दे का बात ये है कि ये जो थोड़ा इंप्रूवमेंट है, थोड़ा अच्छा है, मतलब जो जिस डेटा से तुमने मॉडल नहीं बनाया उस डेटा में भी ये अच्छा काम कर रहा है। मतलब मेरा जो है थोड़ा इस मॉडल पे विश्वास जो है बढ़ गया है। हालांकि वही 78, 73, 75 इस लेवल तक ही है, पर इसमें जो है मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं अब उसको बोल सकता हूँ, जैसे उसको बोला मैनेजर को, हाँ दीदी इसमें 75% करेक्ट प्रेडिक्शन देगा, श्योर श्योर
तो अगर ये एक्सरसाइज करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ हाँ श्योर, चलिए करके तो देखिए। अगर ये नहीं किया तो थोड़ा मतलब हाँ श्योर ही है, मतलब श्योर ही है, तो ऐसा बोलना पड़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्ड आउट सैंपल एंड ट्रेनिंग सैंपल। तो लगभग मेरा तेल खत्म हो गया रंजीत, अभी यहाँ खत्म कर। हेलो सर। हाँ चलो, अभी क्वेश्चन है तो ले लेता हूँ। यस Sir, I have a question. मैडम बोलिए। I am Sonal from Delhi Technological University. हाँ सोनल। Sir, I want to ask sir कि discriminant analysis ठीक है, the concept is fine, that समझ में आ गया. हाँ। But then how would you differentiate this from the logistic regression? अब logistic के अंदर भी हमारे पास ऐसी categories या होती है, 0, 1 के फॉर्म में होती है, राइट? हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसमें भी ऐसे ही है. तो कोई ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस है जहाँ पे